So, welcome to Anurag Minus Verma podcast. This episode features Disha Wadekar, who is a Supreme Court advocate and legal scholar working on caste and discrimination law. In this conversation, we try to break down some of the most common myths around UGC. But before we begin this podcast, a quick appeal that this is a listener funded podcast, not a corporate funded podcast. So, you can become a member of this podcast and you can also support our ongoing campaign to cover yearly studio recording and editing cost. The campaign is live on Razorpay, so you can support this podcast to keep it going. So please do your bit. And now let us begin the new episode of Anurag Minus Verma podcast. All right. So welcome Disha. Welcome to the Anurag Minus Verma podcast. Last podcast, I think we recorded many years back. It's been 2-3 years, if I'm Four not wrong, years. or maybe more than that. 4 years, probably. And that was one of the, I mean, one of the, how should I say, hit podcast because I get so many messages from the people who have watched this podcast, watched that podcast many times, made notes of it, and they said that it completely changed how they looked at Pune as a city and what was the history behind it. So thank you so much, and I'm very glad that we are doing the second one. Thank you so much, Anurag, for having me. I must say, I'm so glad that I'm here and that we are doing this for the second time now. Second time, And I yeah, was yeah. really waiting when you're going to call me because I had such a blast in the first podcast. First one, yeah, yeah. So this time the issue is the UGC guidelines, जिसकी वजह से पूरे देश में एक जबरदस्त storm मच गया. I mean, the entire conversation, I think, in the last few weeks were about UGC, and there is lot of misinformation around what is UGC, why it was needed, and there were many myths that people were claiming that it is going to. I mean, we'll talk in detail कि वो किस तरह के myths उसके around थे. So I was thinking that let's do a podcast from more of from a legal standpoint कि जो myths है उनका कोई basis है भी या नहीं भी है. So in this podcast we'll talk about uh, uh, some of those myths जो कि social media पे हैं, जो even काफी सारे लिबरल साइड में भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इस चीज को उठाते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाते हैं. तो इट्स वुड बी गुड टू अंडरस्टैंड those pointers as well. But I think before we look into those points, it would be good to first start why this particular regulation was even needed and how it came into action. Right. So, Anurag, again, I think we will start with the myth only of how these regulations came about. I think let's address that. क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है दोनों साइड पे ऑन द राइट विंग लेफ्ट विंग लाइक यू सेड द लिबरल्स आल्सो that why is this government so interested in making campuses discrimination free and inclusive, right? But that is not the case. It's not that these regulations, new regulations, UGC regulations on equity have fallen from the sky और अचानक से एक दिन गवर्नमेंट को ये लगा कि हम करेंगे. इट इज a result and a product of sustained court intervention, right? And in fact, what immediately the immediate consequence that the regulations were, they were a consequence of a court order, a 15 September 2025 court order in the matter titled Abida Salim Tadvi versus Union of India, right? And this is the litigation that we have been fighting, not now, but we've been fighting it since the last 6 years. 2019 में पहली बार हमने ये UGC regulations को strengthen करने के लिए ये petition डाला था. अब ये 15 सितंबर 2025 की जो ऑर्डर है, इट्स वेरी क्रूशियल दैट आई टेल यू व्हाट दैट ऑर्डर सेज बिकॉज़ नाउ वी हैव अ स्टे on the regulations, and in effect we also have a stay on the same court order that the same court had given. So 15 September 2025 order gave UGC 10 pointers or suggestions on its equity regulations and how it should rectify its regulations to strengthen them, right? And it's important one understands what these 10-point suggestions were. One of the first suggestions was that UGC should enunciate and explicitly mention all the different forms of discrimination that exist in campus spaces.
राइट? अब ये कैंपस स्पेसेस में क्या-क्या फॉर्म्स होते हैं, उसके भी डिटेल्स हैं। लाइक एडमिशंस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इवैल्यूएशंस में होता है, आपके हॉस्टल और मेस में जो जिस किस्म का सेग्रीगेशन होता है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। All these forms of discrimination need to be enunciated, is the first suggestion of the court. The second suggestion of the court is campus spaces should not be segregated on different lines, especially caste lines, because that is something that we see. थर्ड सजेशन जो यूजीसी के लिए कोर्ट ने दिया था वो ये था कि यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2012 से थे, दे आर नॉट न्यू, राइट? बट दीज इक्विटी रेगुलेशंस हैव ओनली बिन पेपर रेगुलेशंस, उनका इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन हमको दिखता नहीं है कहीं पे भी। आज भी अगर आप कैंपसेस में जाओगे यू विल ऑलवेज सी अ रैगिंग सेल एंड यू विल ऑलवेज सी एन आईसीसी, द वन दैट इज मेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, एटलीस्ट ऑन पेपर वो होता है। बट कहीं पे भी आपको इक्विटी सेल्स जो मैंडेटेड है रेगुलेशंस के तहत, 2012 के जो पुराने रेगुलेशन है उसके तहत मैंडेटेड है, वो कहीं नहीं दिखते। तो एक एनफोर्समेंट क्लॉज लेके आना चाहिए विच मीन्स दैट कंप्लायंस इज इंश्योर्ड, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी और कैंपस यूजीसी के मैंडेटरी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, they will have to face the consequence. And what is the consequence? UGC, under the UGC Act, has powers to basically withdraw grants of universities, जो क्योंकि UGC grants commission है तो वो grants भी देता है. It has powers to withdraw affiliations of colleges, जैसे एक A college is affiliated to बी यूनिवर्सिटी, राइट? ये अफिलिएशन यूजीसी ग्रांट करता है, तो वो भी विथड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कोई कॉलेज इन इक्विटी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उनके कोर्सेज भी यूजीसी डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ पावर्स, वाइड पावर्स दैट यूजीसी हैज। एंड जो पुराने इक्विटी रेगुलेशंस थे उनमें ये क्लॉज था ही नहीं। इस वजह से ये हो रहा था कि द ओल्ड इक्विटी रेगुलेशंस वर गेटिंग किल्ड बाय निग्लेक्ट। दिस इज द टर्म दैट आई रिसेंटली सॉ, Satish Deshpande, he spoke, he did an interview, and he spoke about how a regulation, a mandated regulation to prevent discrimination, was completely killed by neglect, right? So this was another suggestion. The fourth suggestion was, of course, to have a monitoring committee, जिसका मतलब ये है कि ये जो इक्विटी कमिटीज होती है ये कॉलेज के लेवल पे होती है, कॉलेज उनको सेटअप करता है या यूनिवर्सिटी सेटअप करती है। बट देर इज नो मैकेनिज्म कि टू फॉर एन ओवरसाइट, जिसका मतलब है कि इनको अकाउंटेबल कैसे रखे, इनको इंश्योर कैसे करे कि ये फुली फंक्शनल कमिटीज है। सो दे नीड टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विच इज एन ऑब्जेक्टिव बॉडी, राइट? जो शायद स्टेट अपॉइंट करे इस मॉनिटरिंग कमिटी को, सेंटर अपॉइंट कर सकता है, बट देयर नीड्स टू बी वन मैकेनिज्म विच सेज कि यू गिव अस, we will seek all these reports from you, you tell us how you are functioning, how many complaints you've handled, how you've handled those complaints, you know. सो एक मॉनिटरिंग कमिटी उसमें होनी चाहिए। और एक सजेशन ये था कि जो अपील्स का जो मैकेनिज्म था यूजीसी का, तो उसमें जैसे कोई भी केस होता है, एक कंप्लेंट होता है, उसका डिसीजन आता है, इट इज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, नॉट जस्ट द कंप्लेनेंट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्डेंट, टू अपील दैट डिसीजन। तो वो अपील का जो पहले वाले रेगुलेशंस में मैकेनिज्म था, वो अपील हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास जाता था, है ना? तो इन नए रेगुलेशंस में उसका हमने कहा था कि इट शुड एक्चुअली गो टू एन ऑब्जेक्टिव बॉडी। आवर सजेशन वन वाज कि एनसीएससी, एनसीएसटी के पास जाना चाहिए। बट कोर्ट ने कहा है कि वो किसी ऑब्जेक्टिव बॉडी के पास जाना चाहिए, जो कि सही भी है, किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। चौथा सजेशन था कि इन इक्विटी कमिटीज पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज का, वुमेन का, सबका। तो ऐसे कुछ सजेशंस कोर्ट ने यूजीसी को 15 सितंबर के जुडिशियल ऑर्डर में दिए थे। और फिर कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी को ये कंसिडर करके रेगुलेशंस को जल्दी से जल्दी चेंज करके, मॉडिफाई करके उनको नोटिफाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के तहत यूजीसी ने वो रेगुलेशंस 13 जनवरी 2026 में वो लेके आया है। इससे पहले बहुत सारा 2019 से बहुत सारा इंटरवेंशन कोर्ट में हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आई हैं। कोर्ट ने यूजीसी को बहुत स्ट्रिक्टली पूछा है कि आप जो पिटिशनर्स की ये जो डिमांड है, बच्चे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मर रहे हैं कैंपसेस में, आप इसके लिए क्या कर रहे हो? तो यूजीसी को कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली अपना रिप्लाई देने के लिए कहा था कि यू टेल अस व्हाट आर द मेजर्स दैट यू आर टेकिंग।
जिसमें ऑफ कोर्स यूजीसी ये 2012 के ही रेगुलेशंस लेके आता है और कहता है कि हम ये रेगुलेशंस हमारे पास है, जिस पे कोर्ट वहीं पे नहीं रुकता है। अगली ऑर्डर में कोर्ट उनको पूछता है कि आप डेटा लेके आइए, कि ये जो इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल्स है, इक्विटी कमिटीज़ है, इनका क्या फंक्शनिंग है? कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो एक्चुअली है, कितने कॉलेजेस में वो नहीं है, उसका क्या कॉम्पोज़िशन है? ये डेटा भी यूजीसी वापस कोर्ट के सामने लेके आता है और फिर कोर्ट उनको पूछता है कि आप इसका अभी क्या करने वाले हो? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से तो हो नहीं रहा है। तो उस पे यूजीसी बोलता है कि हम एक कमिटी सेटअप करेंगे और हम regulations को और strengthen करेंगे. So this is all a sustained effort over 6 years that has gone in the courts, and of course it is a result of, I would say, the consistent movement, and starting from Rohit Vemula's death, and the movement that picked up in the country, and all the demands and the mobilization, student mobilization that has been happening. Otherwise, also the mobilization has been happening. It's the एक sustained effort. And who are the faces of this litigation? These are two mothers who lost their children due to the consistent, persistent discrimination that they faced in that campus space in a higher educational institution, right? And they are talking about how if their children had that recourse, that legal recourse in the university, in the campus space, maybe things would have been different for them. And they are saying that we have lost our children, but we don't want to stop there. Of course, they are fighting their individual legal battles, right? उनके खुद के जो सुसाइड के केसेस जो है वो तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं उसका क्या हो रहा है. But they are fighting their legal battles, but they did not want other children, other students in the university space to Just for my audience, these two are Rohit Vemula's mother and Dr. Payal Tadvi's mother. mother. Just for Abida the Salim Tadvi is Pal Tadvi's mother, and Radhika Radhika Vemula. Vemula. Okay. And these are both faces of Justice for Payal movement or Hmm. Rohit Vemula movement. They are both Hmm. Hmm. faces of the movement, right? They are not just two women, who let that fight be an individual fight. They Hmm. actually wanted that fight to be a larger fight for all the future and the potential of so many students who enter these spaces. Right? Hmm. Hmm. सो आई मीन यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि पूरा मामला क्या है और ये किस तरह से ये यूजीसी अभी जो सारी गाइडलाइन किस तरह से अभी हुई, लेकिन इसमें एक मतलब बिफोर वी मूव टू व्हाट यूजीसी के जो मिथ्स और वो हैं, बट आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड व्हेन यू स्पीकिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस होल थिंग। ये मामला तो फिर एक्टिविस्ट और लीगल टीम, एडवोकेट्स और कोर्ट के बीच में है। तो इसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या फिर रोल आ गया कि लोग इतना जो सपोर्टर्स मोदी गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, तो उनका रोल क्या है इसके अंदर? आई थिंक इनका तो कोई रोल ही नहीं है। जा जा एटलीस्ट जो मुझे दिख रहा है, आप बताइए बाकी। मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स यूजीसी के रेगुलेशंस जो कोर्ट ने उनको बोला है, क्योंकि कोर्ट डायरेक्शंस देता है ना स्टेट को, अच्छा, तो स्टेट उस पे एक्ट करता है। तो वो रोल है कि कोर्ट ने उनको डायरेक्शंस दिया, उसके हिसाब से स्टेट ने उस पे एक्ट किया है। ओके, ओके, दैट इज गॉट दैट इट। इज दैट इज द रोल दैट लिमिटेड रोल, वेरी हाँ, लिमिटेड रोल। इट्स अ थिंग कॉल्ड मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस। तो हमने जब पिटिशन फाइल किया था, तो हमने कोर्ट को अंडर मैंडेमस ये बोला था कि कोर्ट डायरेक्शंस इशू करे टू यूजीसी। तो उसमें यूजीसी पार्टी था, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी था। तो ये तो पार्टीज होते ही है, किसी भी हुँ। अगर कोई भी चेंज अगर आपको लेके आना है, पॉलिसी चेंज है, लॉ में चेंज है, तो वो तो उन्हीं के थ्रू करना पड़ता है। तो इसके जो मिथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मिथ है वो तो ऑब्वियसली यही है कि अब इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी कंप्लेन होगी या पर्सनल एनिमोसिटी दो ग्रुप्स के बीच में होंगी, तो वो जो दूसरा ग्रुप है स्पेशली एससी एसटी ओबीसी हैं, वो इसका अनड्यू एडवांटेज लेके दूसरे पे केस कर सकते हैं, दूसरे का करियर खराब कर सकते हैं, स्पेशली जो जनरल कास्ट के लोग हैं। तो ये सबसे बड़ा हुँ, आर्ग्यूमेंट है जो अगेंस्ट है यूजीसी के। उन्होंने वायरल किया है कि अब किसी जैसे आई मीन बहुत ही ये तो ऑल्दो बहुत ही फूहड़ किस्म का आर्ग्यूमेंट है फिर भी कि किसी ने किसी का प्रपोज़ किया दलित लड़के ने और उन्होंने मना कर दिया तो वो यूजीसी गाइडलाइन लगा देगा। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि ये बहुत ही अनफेयरली टारगेट करता है जनरल कास्ट को और कैंपस में फिर इस तरह के जो
फ्रिवलस टाइप की कंप्लेंट है वो बढ़ती जाएँगी और शायद फिर कैंपस के पास में ऐसी कोई मैकेनिज़्म नहीं होगी कि वो एग्ज़ैक्टली उस पे उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और एक पर्टिकुलर डिसीज़न ले सके कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला है या फिर कोई पर्सनल डिस्प्यूट है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल आर्गुमेंट? Yeah. So I'll divide it in three parts. Firstly, मैं हम अगर ये मिथ्स डिबंक कर रहे हैं तो मैं इसमें रेटोरिक में नहीं जाऊंगी, मैं इसमें किसी एकेडमिक डिस्कशन में नहीं जाऊंगी. आई विल जस्ट गिव लीगल आंसर्स. अगर आप रेगुलेशंस पढ़ोगे, अगर आप लॉ समझोगे तो आपको ये आंसर्स वैसे तो पता ही होने चाहिए, बट फिर भी हम लोगों के लिए इनको आंसर कर रहे हैं. तो पहला जो इस आपके क्वेश्चन का पहला भाग ये है कि ये एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं ये इसको एक तरीके से वेपनाइज करेंगे, ये एक मिथ है, राइट? तो ये हम डिबंक करते हैं पहले ही कि सेक्शन 3E जो है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है अंडर दीज रेगुलेशंस, तो उसमें ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन will be defined as discrimination on the basis of caste, gender, religion, place of birth, disabilities and others, right? तो ये आप देखोगे कि अगर आर्टिकल 15 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 भी इन्हीं 5-6 एक्सेस जो है, रेस भी है एक्चुअली, इसके अंदर रेस भी है, तो इन्हीं 5-6 एक्सेस के ऊपर कहता है कि ये इन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रोहिबिटेड. तो पहली बात तो ये है कि ये बस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए आया हुआ रेगुलेशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. इट्स कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटीज, शायद ऑल सारे हैं इसके अंदर, ऑल दीज जो आर. दिखा रहे हैं कि सिर्फ़ कास्ट के बारे में है मतलब जो पॉपुलर आर्गुमेंट है। बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल नहीं. तो ये और सेक्शन 3E पढ़ना चाहिए सबको, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा. अब ठीक है, अगर इन्हीं रेगुलेशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करते वक्त ये कहा गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी, राइट? अब आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि पहले रेगुलेशंस में जो इक्विटी 2012 के रेगुलेशंस थे उसमें एससी एसटीज थे, अब उनमें ओबीसीज को ऐड कर दिया है. तो वो जो सब्जेक्ट्स है ऑफ अग्रीव्ड जो पार्टीज होती है, उनको तो आपको बताना चाहिए कि कास्ट का बेसिस है तो एस सी एस टी ओबीसी कर सकते हैं. ऐसे ही अट्रॉसिटीज एक्ट में भी डिफाइन किया है कि एस सी एस टी ही कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट अ नॉन एस सी एस टी पर्सन. तो ये तो कुछ नया तो है नहीं, तो यही इन रेगुलेशंस ने किया है. अब दूसरी बात ये है कि अपर कास्ट लोग क्या ये सोच रहे हैं कि ये जो मैंने बाकी एक्सेस बताया है कास्ट को छोड़ के, उसमें अपर कास्ट लोग नहीं है? जैसे एक अपर कास्ट महिला एक दलित पुरुष पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेन नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है. If the basis of the complaint is important, one needs to understand, right? So an upper caste woman can of course file a complaint for gender based discrimination against a Dalit person. An upper caste disabled person on the basis of disabilities can say कि मेरे साथ disabilities का discrimination हो रहा है, and that discrimination is being committed by a lower caste person, SC ST OBC person, right? So the same regulations are giving upper caste people power to also misuse the regulations, राइट? सो जितना एक एस सी एस टी ओबीसी आदमी उन रेगुलेशंस को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए मिसयूज कर सकता है, अगर और मिसयूज अगर रियलिटी है लॉ की, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, हर लॉ, तो वो पावर अपर कास्ट लोगों के पास भी तो है. तो ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है? ये ओनस बस एस सी एस टी ओबीसीज के ऊपर ही क्यों आ रहा है? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि डिसेबल्ड लोग इसको मिसयूज करेंगे? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि विमेन इसको मिसयूज करेगी? क्योंकि हमने विमेन के लॉज में तो देखा ही है कि हर एक जब विमेन का प्रोटेक्टिव लॉ आया है, वेदर इट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वेदर इट इज द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये नैरेटिव्स तो थे ही ना कि विमेन इसको मिसयूज करेंगी अगेंस्ट. बट बस इन्हीं रेगुलेशंस में ये नैरेटिव क्यों बन रहा है कि कास्ट का जो बेसिस है उसी को एस सी एस टी ओबीसीज मिसयूज करेंगे, बाकी तो सारी चीजें हैं उनको क्यों नहीं करेंगे लोग, अपर कास्ट लोग मिसयूज? तो वो तो कर ही सकते हैं. तो जितना पावर एस सी एस टी ओबीसीज के पास है उतना पावर अपर कास्ट लोगों के पास भी है उसको मिसयूज करने का, राइट? तो ये एक मिथ, मुझे पहली बात तो इसको मुझे डिबंक करना है.
अब आपने इसी में शायद एक चीज़ मुझे ये पूछी कि कास्ट के बेसिस पे व्हाट इज़ दिस व्हाट वाज़ द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड? आई एम सो सॉरी। और वाज़ दिस यही आई थिंक दिस वाज़ द वाज़ द मेन। क्रक्स ऑफ हाँ, क्रस्ट हाँ। बट अब आई मीन इसी को थोड़ा-सा आपने कहा कि जैसे पहले भी एससी-एसटी कानून तो थे ही। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है जब एससी-एसटी एक्ट पहले से है, तो व्हाई डू यू नीड एन एक्स्ट्रा एक्ट? मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर कैंपस में, तो दे कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड ट्राई टू फाइल द एससी-एसटी कंप्लेंट अंडर द एससी-एसटी एक्ट। बट जब पहले से ही है, देन व्हाई नीड एन एडिशनल यूजीसी फॉर दैट? सो आई विल टेल यू अनुराग, द थिंग इज़ कि लॉ में 2 चीज़ें हैं। एक तो सिविल रेमेडीज़ होती है और एक क्रिमिनल रेमेडीज़ होती है, राइट? अभी एट्रोसिटीज़ एक्ट इज़ अ क्रिमिनल लॉ, राइट? तो उसकी रेमेडीज़ भी क्रिमिनल रेमेडीज़ होती हैं, राइट? बट उसका जो ओनस है, वो ऑफेंस प्रूव करने का, एट्रोसिटीज़ प्रूव करने का या कोई भी आईपीसी का भी अगर ऑफेंस ले लो, उसका ओनस या उसका बर्डन बहुत हाई होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको कोर्ट्स में वो प्रूव करना, राइट? सिविल रेमेडीज़ में ये बात है कि सिविल रेमेडीज़ ऐसी होती है कि दे आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, दे आर नॉट ऑफ ओवर्ट नेचर, बट दे आर मे बी ऑफ एवरीडे नेचर के जो एक्ट्स होते हैं, राइट? तो उसमें बच्चों के ऊपर ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमको पुलिस में जाना पड़ेगा। एक 18 साल का अगर बच्चा अभी बस 12वीं करके अगर कॉलेज के स्पेस में आ गया है, 10वीं 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में एंटर करता है, एक तो ऑलरेडी जो वल्नरेबल कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, एंड आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माय कन्वर्सेशन टू कास्ट, I will say that because this includes SC, ST, OBC, women, disabled persons, even people from the Northeast who are discriminated on the basis of race, right? Place of birth. तो इन सभी लोगों को जो वल्नरेबल पोजिशनैलिटी से इन स्पेसेस में एंटर करते हैं, तो इनके लिए अगर ये एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो दे टेक रिकोर्स टू द एट्रोसिटीज एक्ट। ऐसे क्यों हुआ कि पायल 1 साल तक ये हैरेसमेंट फेस कर रही थी ऑन एन एवरीडे बेसिस, बट डिड नॉट feel that she will get justice in the criminal justice system, because we also know it is so difficult to get justice in the criminal. She could have also filed an atrocities, right? She was a And scheduled people are scared of approaching the police in general. in So, general, mm, right? mm. And then there is such less possibility of you getting justice also, क्योंकि इतना burden onus high होता है. It all depends on so many factors. You try to see क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आप एक अट्रोसिटीज केस फाइल करो, पहली बात तो अट्रोसिटीज केस जो कंप्लेंट होती है वही फाइल करने में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि पुलिस करती नहीं है आसानी से। हमने कितनी बार देखा है कि अट्रोसिटीज केसेस में आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को अप्रोच करना पड़ता है to ask police to lodge that FIR under atrocities, right? It happens in almost all atrocities cases, right? तो एक तो वो कंप्लेंट फाइल करवाना, दूसरा फिर वो कंप्लेंट जब होगा तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है तो पुलिस वहीं पे समरी बी रिपोर्ट डाल के क्लोज कर देती है, वहीं के वहीं केस क्लोज करती है। अगर करती भी है इसको परस्यू इस केस को परस्यू, तो वो इन्वेस्टिगेशन एक लंबा चलता है। इन्वेस्टिगेशन ही सालों-साल लगा देता है। अब सोचिए ये बच्चे 2 साल, 3 साल उस 3 साल उस अगर उस स्पेस में हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम एट्रोसिटीज़ केसेस में साल लग जाता है उसमें, साल डेढ़ साल, राइट? आपको कॉन्स्टेंटली पुलिस को अप्रोच करना पड़ता है, पुलिस आपको अप्रोच करती है। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग व्हाइल यू आर मेबी अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, राइट? एंड यू आर एंटरिंग दैट स्पेस एंड यू हैव नो सपोर्ट। राइट? तो आप ये तो बस इन्वेस्टिगेशन का बात हुआ। अभी उसके बाद होता है फिर वो चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है। उसके बाद एक पूरा बड़ा ट्रायल चलता है। वो ट्रायल भी किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जाता है क्योंकि विक्टिम को तो स्टेट रिप्रेज़ेंट करता है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेज़ेंट करता है। अब उसमें स्टेट जेन्युइनली आपके इश्यू में, आपके कंप्लेंट में इंटरेस्टेड है उसको परस्यू करने में या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। वो किस तरीके से उसको करता है। फिर उसमें आपको ट्रायल पूरा जो होता है उसमें विटनेसेस होते हैं, सारे विटनेसेस इस साइड के उस साइड के उनको एग्जामिन किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, राइट? एंड उसमें भी कितना सक्सेस रेट है, बस अट्रॉसिटीज का ही नहीं, आप कोई भी प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन ले लो, आप रेप लॉज भी ले लो, बहुत कम ये होता है कि कन्विक्शन
इन केसेस में होता है, राइट? तो ये क्रिमिनल लॉ की कुछ इश्यूज है, ये सिस्टेमिक इश्यूज है, ये हम एक झटके में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से सिविल रेमेडीज होती है, राइट? और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इज एन ऑफेंस, ओके, डिफाइंड इन अ क्रिमिनल लॉ, राइट? बट सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए आपके पास सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल है अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, कि आप आईसीसीज आपको सेटअप करनी चाहिए और वहां पे आपको सिविल रिकोर्स है, राइट? तो ये आपका वॉलेंटरी आपके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपको सिविल रिकोर्स लेना है या आपको क्रिमिनल रिकोर्स लेना है। इट इज अप टू अ वुमन इन अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस वेदर शी वांट्स टू अप्रोच द पुलिस or whether she wants to approach a civil mechanism, which is a ICC, right? तो ये उसके पास ये ऑप्शंस होने चाहिए, राइट? सिमिलरली अगर हम अट्रॉसिटीज को देखें तो हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो है। One can for discrimination complaints one can obviously go under the atrocities act, file an atrocity. But there is no civil remedy available if one wants to exercise that. And that remedy, the equity regulations of 2012 were giving in some ways, right? अब दूसरा atrocities एक्ट के बारे में सबसे बड़ा, जो मैं बहुत पहले से ये बात बोल रही हूँ, कि अट्रॉसिटीज एक्ट में अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशंस को डिफाइन किया है। उसमें आप अगर सेक्शन 3 को पढ़ो तो उसमें विमेन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें लैंड रिलेटेड अट्रॉसिटीज है, विमेन रिलेटेड अट्रॉसिटीज है, लैंड रिलेटेड अट्रॉसिटीज है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अट्रॉसिटीज भी है, कोई आपका एसीआर खराब कर देता है, वो भी डिफाइन किए गए हैं। बट एजुकेशन रिलेटेड, स्पेशली हायर एजुकेशन रिलेटेड जो अट्रॉसिटीज है, जो एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्म की होती है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होता है, वो अट्रॉसिटीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिमांड होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अट्रॉसिटीज एक्ट में ये अमेंडमेंट आना चाहिए, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जिस किस्म की अट्रॉसिटीज होती है उनको उसमें डिफाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड अट्रॉसिटीज उसमें बहुत कम अ, आती है। आपका जो सिविल राइट्स एक्ट है 1950 का, या अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें बहुत रूडिमेंटरी फॉर्म में एजुकेशन रिलेटेड अट्रॉसिटी वो डिफाइन किया है, ऑफेंसेस डिफाइन किए हैं, बट दैट इज नॉट स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम्स। हम अगर देखें तो क्या किस्म का डिस्क्रिमिनेशन अगर एस सी एस टी ओबीसी बच्चे जो फेस कर रहे हैं, वो क्या किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है? एक तो रिजर्वेशन की वजह से एक स्टीरियोटाइपिंग बन जाता है ऑलरेडी, कि इनके पास मेरिट नहीं है, ये ऐसे ही आए हैं, दीज आर ऑल सरकार के जमाई। तो वो तो एक वो जो आपकी बातचीत में जो स्लर्स होते हैं या वो होता है, उसमें एक वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरे जो सिस्टेमिक फॉर्म्स है वो ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, राइट? उसमें ये आता है कि स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हम सब लोगों को, एस सी एस टी ओबीसी लोगों को मिलती है, स्टूडेंट्स को। वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को सरकार उसका मतलब सालों साल वो डिले कर देती है। अब जो वो सालों साल डिले करती है तो बच्चों पे उसका ओनस नहीं होना चाहिए कि कहीं जाके उनको कहीं से पैसे इकट्ठा करके कॉलेज में वो फी पे करनी चाहिए, राइट? तो बट होता क्या है कि कॉलेजेस इसको इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके बच्चों को परेशान करने लगते हैं, हैरेस करने लगते हैं, विक्टिमाइज करने लगते हैं। कैसे करते हैं? दे विल से कि हम आपका स्टूडेंट रोल से नाम निकाल देंगे अगर आपने फीस टाइम पे नहीं पे की, क्योंकि वहां से तो गवर्नमेंट से तो आई नहीं है आपकी स्कॉलरशिप। ये सारे केसेस हमने एक्चुअली कोर्ट के सामने हम लेके आए हैं, दीज आर एक्चुअली रियल केसेस। व्हाट वाज रोहित्स केस? रोहित अपने लेटर में लिखता है कि मेरी 3 साल से मेरी स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं है। This scholarship should be given to someone. That is the delay in scholarship. That was a systemic issue Rohit was talking about, right? um, तो ये जो हैरेसमेंट है, ये बहुत सिस्टेमिक होता है। दूसरा एक जो सिस्टेमिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे। तो हमने नेशनल लॉ स्कूल्स में भी ये देखा है कि हॉस्टल का एलोकेशन जो होता है वो रैंक बेस्ड होता है। हाँ। वो रैंक बेस्ड एलोकेशन, अब कोई कहेगा कि रैंक बेस्ड ही है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या गलत है? आपका अच्छा रैंक है तो आपको अच्छे रूम्स मिलने चाहिए, हॉस्टल रूम्स। हम्म। यस, राइट। वंस तो आपका रैंक तभी तक मायने रखता है जब तक आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। एक बार सभी लोग कॉलेज में एडमिट हो गए तो एवरीवन इज एन इक्वल, राइट?
तो रैंक बेस्ड एलोकेशन में ये हो जाता है कि एससी एसटी ओबीसी बच्चे, क्योंकि वो रिजर्वेशन से आते हैं, एंड आई विल नॉट मीन इट, आई डोंट मीन दैट दे डोंट कम ऑन देयर ओन मेरिट, बट लार्जली दे विल बी लोअर इन द रैंक्स, लार्जली. And therefore you see that rank based allocation of hostel ghettoizes SC ST OBC students, right, often giving them lesser facilities than upper caste students. तो ये एक indirect form of systemic discrimination भी होता है. मेस में जिस हिसाब से सेग्रीगेशन होता है, जिसका नाम वेज नॉन वेज सेग्रीगेशन के नाम पे किया जाता है, वो एक किस्म का इसी तरीके का सेग्रीगेशन है. तो ऐसे बहुत सारे सिस्टेमिक जो फॉर्म्स है, या रिजर्वेशन पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट करना. एस सी एस टी का तो, क्योंकि एस सी एस टीज ने वो फाइट लड़ी है इतने सालों साल, तो वो अभी हम देख रहे हैं कि कोई डिनाई नहीं कर सकता है कॉलेज एस सी एस टी रिजर्वेशन. बट ओबीसी रिजर्वेशन, मतलब 2-3 साल पहले तक नेशनल लॉ स्कूल्स ओबीसी रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे थे. जबकि मंडल टू कब का हो चुका है, 2012 से आपको देने नहीं थे. दे रहे थे मतलब स्टूडेंट्स को ले नहीं रहे थे वो लोग। We didn't have that policy. अच्छा, Reservation पॉलिसीज़ policies. नहीं थी। हाँ, reservation policies was only for SC STs. हुँ, तो ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है? तो isn't this a systemic form of discrimination? तो ये सिस्टेमिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शायद हम क्रिमिनल लॉज में ना लेके आ पाए, बिकॉज क्रिमिनल लॉ की लिमिटेशंस है ये सब प्रूव करने की. बट सिविल लॉ में आप इन फॉर्म्स, इन सिस्टेमिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से. और जैसे कि 2012 के रेगुलेशंस में उनको बहुत अच्छी से डिफाइन किया गया है इन सब फॉर्म्स को. और आप, यू कैन सीक सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. सो इट इज नॉट ओनली टू, ये मतलब ये नैरेटिव भी यही बन रहा है कि इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाएगा. इसमें बस इंडिविजुअल्स नहीं है, अगर अथॉरिटीज भी काम नहीं करती है तो उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है. इट्स नॉट कि बस स्टूडेंट्स को इसमें टारगेट किया जाएगा. दिस इज ऑल्सो फॉर सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन. हुँ। बट इसमें जैसे कई लोग मतलब वही आर्गुमेंट पे अगर हम बात करें हाँ, हाँ. मिथ्स पे, तो जैसे कि वो कि जैसे आपने कहा अथॉरिटी को कर देते हैं, तो इसमें कई मैंने ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था जो लोग इसके अगेंस्ट थे, वो बोल रहे हैं कि फिर तो अगर टीचर कम मार्क देगा तो वो भी टारगेट हो जाएगा, देन ही विल हैव टू गिव मोर मार्क्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट फियर कि उस पे कुछ यूजीसी का केस उस तरह का हो सकता है। तो आई मीन व्हाट तो डू यू थिंक अभी अबाउट हम दिस? डिफेंस से ज्यादा हम ऑफेंस में जाते हैं इसके आर्गुमेंट. हुँ, हुँ, एक नाफे कमेटी की रिपोर्ट हम कोर्ट में लेके आए थे अपने पिटिशन में. हुँ, तो जेएनयू में ऐसे बहुत सारे एस सी एस टी बच्चों के कंप्लेंट्स थे कि वाइवा वो से जो होता है, इंटरनल असेसमेंट होती है, उसमें जानबूझ के हमको कम मार्क्स दिए जा रहे हैं. ठीक है, वो बच्चे दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर एक्सटर्नल्स व्हिच इज देयर रिटन एग्जाम, और उसी बच्चे को आप जीरो मार्क्स दे रहे हो. और एक्चुअली वो केस केस ऐसा था कि वो बच्चे, वो जो एस सी एस टी बच्चे हैं, कंसिस्टेंटली नाफे कमेटी ने उसका स्टडी किया है, बहुत ढंग का स्टडी किया है. कंसिस्टेंटली एस सी एस टी बच्चों को ही जीरो मार्क्स दिए जा रहे थे, और बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली दिए जा रहे थे. अगर जीरो मार्क्स है तो सबको मिलने चाहिए जीरो मार्क्स. तो नाफे कमेटी फिर उसमें रिकमेंडेशन देती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देती है, कि बोलती है कि ये अगर हमको कम करना है तो हमको इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है वो कम करना पड़ेगा, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो ये तो, दिस इज अ नोन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट हैपेंस, ये कुछ नई बात नहीं है. दूसरा, मैं एक रिपोर्ट आपको बताती हूँ इवैल्यूएशंस के बारे में. मैं डिफेंस में नहीं जाऊंगी, मैं बताती हूँ रियलिटी क्या है. ये केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में. दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल है जिससे एक अफिलिएटेड कॉलेज है, महावीर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज. अब उसका जो फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में सालों साल लगातार बस एस सी एस टी बच्चों को फेल किया जा रहा था. ओनली एस सी एस टी किड्स, राइट. So a committee was set up because then there was a huge uproar from the SC/ST kids. बहुत सारे बच्चे तो ईयर डाउन हो रहे थे, मतलब उनका कितना नुकसान हो रहा था, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में दे वर पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स, बट दैट फिजियोलॉजी टीचर हैड समथिंग, राइट. तो फिर एक मुनगेकर कमिटी बैठी, मुनगेकर जो एक नोन एकेडमिक है, उनकी एक कमिटी बैठी, एंड दैट कमिटी फाइंड्स दैट दिस इज अ नोन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये हो रहा है. और जिस डिस्प्रपोर्शनेट मैनर में एस सी एस टी बच्चों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, इट शोज दैट देर इज डिस्क्रिमिनेशन. और फिर वो कमिटी बहुत सारे रिकमेंडेशंस देती है और एक रिपोर्ट निकालती है.
college does not act on that committee's recommendations, right? And then of course the kids approach the Delhi High Court. SC ST kids approach Delhi High Court, and Delhi High Court से एक बहुत अच्छा फिर डिसीजन आता है, जिसकी वजह से फिर कॉलेज बोल डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अभी इसका इन बच्चों का फ्रेश एग्जाम लीजिए फिजियोलॉजी का, और आप फिर उनको एग्जामिन कीजिए। वो फ्रेश एग्जाम होता है, एंड ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम पास दैट एग्जाम, राइट? तो ये नोन फॉर्म है इवैल्यूएशंस में डिस्क्रिमिनेशन करना। ये तो किसी भी SC ST बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछोगे, ये तो आप अपर कास्ट बच्चे बोल रहे हैं अभी, आप ये लेंस से देखोगे तो वो आपको आपने अपने अगर एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो ये तो नोन फॉर्म्स है, राइट? अब दूसरा जो ये है कि इवैल्यूएशन में तो फिर मार्क्स ही नहीं दे पाएंगे, ये वो जो भी है। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू किया था तो मैंने यही एग्जाम्पल दिया था कि it will not be easy to prove that this is uh, once a complaint is filed that this is a discriminatory act, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलग से डिफाइन किया है, बाकी डिस्क्रिमिनेशन को अलग से नहीं डिफाइन किया है, बट इसका इसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करने का ओनस भी ज्यादा है। क्या डेफिनेशन है? Caste based discrimination is discrimination on the basis of caste against SC ST OBCs। तो अगर SC ST OBC बच्चे के साथ इंडिविजुअल कुछ विक्टिमाइजेशन या हैरेसमेंट होता है उसके इंडिविजुअल होने की वजह से, तो दैट विल नॉट बी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देयर विल बी नो रिकोर्स फॉर दैट किड इन दीज रेगुलेशंस। बट इफ दैट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आप आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उसका बेसिस कास्ट है, जो कि आप एट्रोसिटीज एक्ट में भी देखते हो कि आपको दिखाना पड़ता है। अभी उसका तो अलग वो हो गया है, बट आपको दिखाना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस इवैल्यूएशन होगा, and the professor gives a Dalit student, SC student less marks, and an upper caste student high marks, then one will have to show that both of them gave same answers, right? You will have to show that कि उनके evaluation papers देख के आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के answers तो same थे, but एक को कम marks मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले। So this is the work that the committee has to do, right? It's not going to be so easy. बट इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट आता है कि जो अगर कमिटी बन भी जाए इस तरह की, तो won't it be very complicated for that committee to, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आपने एग्जांपल दिया कि ये बहुत ही मतलब ग्रे एरिया में है, आप इसको एग्जैक्टली प्रूव भी नहीं कर सकते, नहीं भी कर सकते, दोनों के आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो टीचर का भी होता है कि उसको क्या लगता है कि ये बेटर है या नहीं है, तो जी, दैट जी, कैन बी अ जी। ग्रे एरिया ऑन दैट। करेक्ट, और करेक्ट, मे करेक्ट। बी देयर इज अ सम सटल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसी रूम के अंदर हुआ है जहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, विटनेसेस सो नहीं है। कमिटी कमिटी फिर उसको किस तरह से ढंग से हैंडल कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं कि फिर वो क्या कमिटी इतनी इक्विप्ड है इस तरह की कंप्लेंट्स लेने के लिए और उस पे एक पर्टिकुलर एक डिसीजन लेने के लिए कि यहाँ पे किस राइट, तरह का हैरेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? राइट। तो वो तो अनुराग, यू नो द आंसर टू दिस, एंड No, एवरीवन। I know, but या I don't या want या to फॉर द put लार्जर yeah, ऑडियंस, for कि audience, हमने yeah. आईसीसीज में देखा ही है कि Hmm. आज अगर आईसीसीज कॉलेजेस में है भी, राइट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में कितने केसेस में एक्चुअली जस्टिस होता है, राइट? बहुत बहुत रेयर है कि वो होता है। और आईसीसीज का कॉम्पोजिशन भी इतना अमेजिंग है, क्योंकि आईसीसीज जो कॉलेज के स्तर पे जो आईसीसीज बनती है, उसमें एक तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 50% मिनिमम होना चाहिए। उसकी जो चेयरपर्सन होती है वो वुमन होनी चाहिए। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती है। फिर उसमें स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो आप कैसे एंश्योर करोगे कि एक कमिटी ज़्यादा से ज़्यादा, सी लॉ इज़ नॉट द आंसर टू एवरीथिंग, बट लॉ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा जो डिमांड कोर्ट से था अबाउट द चेंजेस दैट आर नीडेड इन द ओल्डर रेगुलेशंस, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था प्रेयर वो यही था कि पुराने जो 2012 के रेगुलेशंस थे, उनमें एक सिंगल मेंबर बॉडी था, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हु वाज सपोज्ड टू बी ऑफ द रैंक ऑफ अ प्रोफेसर और एन एसोसिएट प्रोफेसर, राइट? And this person, if a complaint, so he or she was supposed to receive complaints, or they were supposed to receive complaints, and if they feel that there is some merit in the complaints, they would constitute a committee, right? And then that committee will decide. So we thought that is a very problematic provision. Every person should be able to approach a multi-member body which is representative, which is a committee, directly if there is any sort of grievance that they have.
राइट। तो हमारा कहना था कि इट शुड बी अ मल्टी मेंबर बॉडी। उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, प्रोफेसर्स होने चाहिए, एक्सटर्नल मेंबर्स लाइक सिविल सोसाइटी पर्सन्स जिन्होंने एजुकेशन पे, डिस्क्रिमिनेशन पे काम किया है, एकेडमिक्स, ऐसे लोग इन इन कमिटीज पे होने चाहिए। एंड इट्स ओनली थ्रू दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे ऑल स्टेक होल्डर्स भी है और रिप्रेजेंटेशन भी है, मतलब जहाँ पे विमेन का, SC ST OBCs का, डिसेबल्ड पर्सन्स का, इन सब का अगर उस कमिटी में रिप्रेजेंटेशन हो तो ही ये कमिटी कुछ ढंग का जस्टिस कर सकती है, यही हम इंश्योर कर सकते हैं। अभी इसके बियॉन्ड हम किसी भी सिस्टम में फिर तो वो पूरा, इट्स अबाउट whether we want to go towards anarchy or we want to stick to the guns and we still want to work with the system, right? So this is about working with the best system and ensuring that we have the best system possible. So this was the suggestion. And to our surprise, the new 2020 UGC regulations, after this recommendation was made, they have made a multi-member body. They have student representatives, they have professors, of course, they have civil society members on that committee, right? And there is, of course, one clause which says that uh, these committees shall have representation from SC ST OBC, women, persons with disabilities, right? So at least now I think that is a step ahead, but there is also a, a huge catch over there. The catch is this, that the chairperson of the committee in the new regulations, 26 regulations, is the head of the institution. But that, according to me, is a technical error which can be easily done away with. Because जो कमिटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, मतलब फाइंडिंग उसका जो भी होता है, एक बार कंप्लेंट आती है, अपनी फाइंडिंग्स होती है, तो वो कमिटी को वो जो रिपोर्ट होती है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को सबमिट करनी होती है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक्ट्स ऑन द पनिशमेंट कि क्या पनिशमेंट देना है, क्या एक्शन लेना है. So head of the institution can't be a part of the committee as well as take action, right? So it's also a very legal technical error, I would say, that can be easily done away with. It's a conflict of interest, very easy to convince the court to just do away with it easily, right? But more importantly, this is now like a more representative committee with more stakeholders involved, I would say. हम्म। तो इसी से अब एक फाइनल जो मेरा क्वेश्चन है वो दो पार्ट में, एक तो इंटेंस जो इस यूजीसी के अगेंस्ट जो पूरा नैरेटिव चला सोशल मीडिया में, और आई मीन इसमें एक एस्पेक्ट तो ये भी था कि वो उन्होंने मोदी को भी नहीं छोड़ा कास्ट को लेके, उनकी कि तेली है, तेली ने अपनी औकात दिखा दी, Yeah. छोटी जात का होता, वो मोदी पे ही चढ़ गए और नहीं तो, और वो प्रूव कर रहे हैं कि क्यों जरूरत है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, मतलब उसमें भी एक आयरनी है। तो बट ये था बहुत ही ज़बरदस्त कास्टिस्ट एक तरह का, उन्होंने Hmm. नैरेटिव इन्होंने बिल्डअप किया कि हमने पहले इनको बहुत कुछ दे रखा है, फिर से ये आएँगे, अब हमारे पे करेंगे। बट ये नैरेटिव जो कि टेक्निकली एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी लोग हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि सारे जो मीडिया ओनर के हाउसेस हैं, जो बड़े-बड़े थिंक टैंक वाले लोग हैं, या फिर इवन जजेस भी काफ़ी हद तक वो काफ़ी सिम्पैथेटिक लेंस रखते हैं इसको, इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर या फिर उनकी डिमांड्स को लेकर, तो एंड में उन्होंने इस पे स्टे लगवा ही दिया। तो पहली चीज़ तो ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में क्या करती है? सेकंड, अब इसका फ्यूचर क्या स्टे लग गया तो व्हाट आर द लीगल पॉसिबिलिटीज़ अहेड? तो जो पेटिशंस आए थे वो जो सोशल मीडिया पे और ऑन द स्ट्रीट्स, जो भी आप ये नैरेटिव बता रहे हो, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है या एक सर्टेन काइंड ऑफ नैरेटिव है, उस नैरेटिव को लेके ही उसका ही रूपांतर एक पिटिशन में हुआ, एक नहीं 4 पिटिशंस में हुआ, राइट? हमारा जो पिटिशन था जो बोल रहा था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैंपस में एड्रेस करो, वो 2019 से पेंडिंग है। उसका फाइनल कंक्लूजन कहीं 2026 में आया है। ठीक है, जिसके तहत ये रेगुलेशंस आए। बट ये पिटिशंस लिटरली मेरे हिसाब से फाइल किए गए कुछ जनवरी में। ये सब जब रेगुलेशंस आए तब ये पिटिशंस इनको फाइल किया गया। इसका बेसिस ही यही था। उनके प्रेयर्स एक्चुअली बताना बहुत ज़रूरी है। उनका प्रेयर था कि यूजीसी के ये जो रेगुलेशंस है, इसका जो डेफिनेशन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसमें बस SC ST OBC आते हैं। जनरल कैटेगरी को उसमें लेके नहीं आया गया है, तो उनको भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो मतलब फिर कोई भी लॉ जिसका बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना है, उसका पॉइंट ही नहीं रहता है। अगर
सोसाइटी ही कास्ट न्यूट्रल है और सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है ही नहीं, तो उसको एड्रेस करने की क्या बात है? देयर इज़ नो नीड। तो एक तरीके से उसकी आत्मा, उसका सोल जो है इन रेगुलेशंस का निकालने का ये कोशिश है। और ये पिटिशंस ऑफ कोर्स जब फाइल किए गए, कुछ ही दिनों में इसमें स्टे भी लग गया, जो जैसे मैंने बोला कि 6 साल की जो लिटिगेशन और लड़ाई थी, वो उसका 4 दिन में उसका उस पे हाँ, स्टे चल गया। बहुत ही जल्दी, बिना किसी कोई स्ट्रीट जी। मोबिलाइज़ेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट थ्रू नैरेटिव। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जिस यूजीसी को लोग इतना बेनिफिट दे रहे थे, उनका कोर्ट में क्या स्टैंड था? क्योंकि रेगुलेशंस तो उनके थे ना, यूजीसी के रेगुलेशंस थे, तो यूजीसी ने क्या उन रेगुलेशंस को डिफेंड किया कोर्ट में? यूजीसी ने बिल्कुल उन रेगुलेशंस को डिफेंड नहीं किया। किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया। यूजीसी पूरे मामले में थ्रू आउट चुप रही। यूजीसी के लॉयर्स ने कुछ नहीं बोला। तो जो चल रहा था पिटिशनर्स के साइड से वो चल रहा था। हम एज़ पीपल ऑन द ऑपोज़िशन अपोजिंग दोज़ पिटिशंस, ये अपर कास्ट को इंक्लूड करने वाले पिटिशंस हैं, हम उनका विरोध कर रहे थे। बट जिसके खुद के रेगुलेशंस ये थे यूजीसी के, जिसको लोग गाली मार रहे थे कि यूजीसी ने ये किया, यूजीसी ने वो किया, वही यूजीसी अपने स्टैंड पे टिका नहीं रहा है कोर्ट में। उनको टिकना चाहिए था। तो ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी दिस शोज़ कि यूजीसी का क्या स्टैंड है और कितना क्रेडिट यूजीसी को एक्चुअली जाना चाहिए इन रेगुलेशंस के लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं कहूँगी, और मुझे ये कहना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि द बैकलैश is not only about the regulations. Let's understand this. This is not about the regulations. Forget the regulations. The regulation तो बहुत छोटी चीज है। क्या regulations है? सिविल रेमेडीज देने वाले हैं ये रेगुलेशन। क्या करने वाले रेमेडीज क्या होती है? सिविल रेमेडीज एक कैंपस स्पेस में, अगर आपको सिविल रेमेडीज एक इक्विटी कमिटी देने वाली है, क्या रेमेडीज दे रही है वो आपको, उनके पास क्रिमिनल एक्शन तो है नहीं। वो आपको नहीं, नहीं, लीगल बेसिस है, वो लॉ है, बट वो सिविल लॉ है, मतलब उसको आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हो ना। हाँ, जब आप कोर्ट नहीं हो या आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं हो, तो आप एक इक्विटी कमिटी हो, आप क्या बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो एक अपॉलजी लिखो। इफ देयर इज़ अ फाइंडिंग कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आप बोल सकते हो एक एक अपॉलजी लिखो, यही होता है इन कमिटीज़ में, बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अम, अपॉलजी लिखो या तो एक अंडरटेकिंग दे दो कि ये सारी हरकतें, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। है ना? या आपको बोला जा सकता है कि अगर आप प्रोफ़ेसर हो और आपके अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस हैं और उसका फाइंडिंग निकला है कि नहीं आपने ये किया है, तो आपको बोल सकते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आपको सस्पेंड कर सकते हैं, राइट? एक्सट्रीम केसेज़ में, जो कि बहुत कम होता है, आईसीसीज़ का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि एक्सट्रीम केसेज़ में टर्मिनेट किया जाता है, अगर आप एम्प्लॉयी हो कॉलेज के, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको रस्टिकेट किया जाता है। ठीक है? दिस इज़ मैक्सिमम दैट अ कमिटी कैन डू under these regulations. So this is not about the regulations. Let's understand. This is about something larger. This is about the fact that the regulations have been there since 2012. Why have upper castes not risen against 2012 regulations? Why isn't anybody asking this question? 2012 से है ना regulations. तो क्यों अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के लोगों को तब से ही प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी यही था, मैकेनिज्म तो वही था, बस अभी उसको स्ट्रेंथन किया है। तो प्रॉब्लम ये था कि 2012 के जो रेगुलेशंस थे वो पेपर रेगुलेशंस थे, सबको पता था कि इसका कुछ वैसे तो रूपांतर नहीं होने वाला है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। उनको निग्लेक्ट कर दिया गया था। अब जब गवर्नमेंट खुद वो रेगुलेशंस स्ट्रेंथन करती है, बोलती है कि हम इसको नोटिफाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो वो थ्रेट रियल लग रहा है कि ये रेगुलेशंस एक्चुअली इम्प्लीमेंट होंगे, एनफोर्स होंगे, राइट? और उसमें थ्रेट ये भी है कि अब जब कोई लॉ डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने वाला आता है, वो लॉ एक एक्नॉलेजमेंट देता है। क्या एक्नॉलेजमेंट है? कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ रियलिटी ऑफ योर पब्लिक स्पेस, ऑफ योर कैंपस स्पेस, ऑफ योर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक एक्नॉलेजमेंट है ना, आप किसी चीज़ को इसलिए एड्रेस करते हो क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हो कि वो चीज़ एक्जिस्ट करती है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है ना, इस एक्नॉलेजमेंट से दिक्कत है अपर कास्ट्स को। दैट इज़ माय फीलिंग। That acknowledgement is the reason why. Because
See, when UGC says that we are bringing regulations to address caste based, gender based, disabilities based discrimination, this nation has to now acknowledge whatever its history, has to now come out and acknowledge, and it is an official acknowledgement that discrimination in campuses is a reality. And that is what is causing this sort of um, restlessness and backlash. क्योंकि वो acknowledgement हम देखते हैं ना, we've been talking about how castelessness is a real thing, right, in our society. So that acknowledgement, neither the right wing nor the liberals, upper caste liberals, nor the leftists, and you will see their statements on this, they don't want to make that acknowledgement, right? So I think, all in all, this is not at all about the regulations. This is द लार्जर, जैसे बाबा साहब ने कहा है ना कि जो रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन है, बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, इट्स द रिटरेशन ऑफ द same struggle and fight that we are seeing happen. And I'm so glad actually that we are seeing this. Like our generation is seeing this. That ये जो reality है हमको दिखनी चाहिए. और आई थिंक ये इन्होंने तो खुद ही डॉक्यूमेंट कर दिया अपना कास्टिस्ट नेचर, जिस तरह की रील्स बनाई हैं, जिस तरह के स्टेटस इस दौरान डाली हैं, तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन अगर लीगली किसी को चाहिए तो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। खुद ही ने बता रहे हैं कि हाँ, हम हैं, हम करते हैं कास्ट बेस्ड। Yeah. तो वो सारी चीज़ें, इसमें एक नैरेटिव वो भी था जिसके अंदर जो कि हाईली प्रिविलेज्ड जो सवर्ण थे, जैसे कुमार विश्वास, वो कविता लिख रहे हैं कि मैं तो हूँ अभागा स्वर्ण। Which is Okay, I have to tell you something, Anurag. ये जो पेटिशन था, इस पेटिशन में लिटरली किसी ने वो पोस्ट भी डाली थी कि पेटिशन में लिखा गया था कि अपर कास्ट क्लेम कर रही है, पेटिशन में लिखा है कि अपर कास्ट क्लेम कर रहे हैं कि वो दे आर अकिन टू क्रिमिनल ट्राइब्स, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जिनको बाय बर्थ स्टिग्मेटाइज किया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर. हम्म। So Savarnas have now become criminal tribes. They are calling themselves criminal tribes कि हमको basically by birth हमको बताया गया है कि बताया जा रहा है इन लॉज की वजह से कि हम क्रिमिनल्स हैं, राइट? बट ऐसे कौन से ब्राह्मण या बनिया या जो भी लोग हैं, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स का रियलिटी है ये है कि वो आपको सिग्नल्स पे भीख मांगते हुए दिख रहे हैं जी। as a result of the criminalization that they are facing, right? They're literally on the streets begging, and they're still getting criminalized under the begging act, right? हम्म। तो ऐसे कितने सवर्ण हमको एक्चुअली वी विल सी देम ऑन द स्ट्रीट्स बेगिंग. आई हैवंट हम्म। सीन एनी, बट या. या इनफैक्ट मैंने एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट किया था निकिता सोनावनी के साथ में, क्रिमिनल ट्राइब पे, सो आई गिव राइट, द लिंक दैट राइट, यू राइट, कैन राइट. आल्सो listen it and understand what exactly are व्हाट denotified इज tribe क्रिमिनल and what they जस्टिस go through and how loosely you are using this term for yourself. So and the this is immediate there. oppressors of criminal tribes are also upper castes. Yes, So yes, yes. it's yeah. So yeah, superb. Thank you so much, Disha, for coming to this podcast, and you have so brilliantly articulated this whole. There was so much of noise around this UGC, and you have deconstructed it in such a detailed way. Thank you so much for coming Thank to you this so much for podcast. having me, Anurag. Thank you. Thank you.